everyone, this is Shivika. Welcome back to English class. Students, today I am going to continue this class with a new story adapted from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Jonathan Swift, he was born on 30th November 1667 in Dublin, Ireland, and he was died on 19 October 1745 at the age of 77 in Dublin, Ireland. His pen name was Lemuel Gulliver, and there are some important works of Jonathan Swift like A Tale of a Tub, Barbarian's Letters, Gulliver's Travels, A Modest Proposal. So these are some important works of Jonathan Swift which I like the most. So first of all, I am going to summarize the story. It is not a complete story, it is a part of that story, Gulliver's Travel. It is a small part of that story. So first of all, I am going to summarize it in English, and after that I will give the Hindi interpretation also, and in the last I will conclude the story. So without wasting any moment, I would like to start the story. So listen carefully. Summary of the story. Let us understand something about the story. This story has been taken from the very famous Gulliver's Travels. In total, Gulliver goes on 4 different voyages. He goes on 4 different voyages. This extract is about the second voyage. This story is about the second voyage. He takes where he meets the gigantic humanoid giants. Giant means a huge creature. So this story is about the second voyage. He takes where he meets the gigantic humanoid giants. These people exhibit Gulliver as a sideshow attraction. Thus, contrary to the popular voyage to Lilliput, this will make us understand this second voyage. It is also an interesting one where the land of giants offers him surprise. This land contains people who are incredibly huge. Where Gulliver meets the inhabitants, he thinks they are all monsters because they are look like a monster, all are they look like a giants. That's why Gulliver thinks that all are they monsters. So moreover, there are around 7 other monsters that discover him. They talk amongst them to decide what to do with him, what to do with Gulliver. Gulliver is seen by a farmer who thinks Gulliver is a little animal. The farmer takes Gulliver home where he encounters different things. However, these huge creatures are surprisingly kind to him. All are they very huge, but surprisingly they are kind to Gulliver. So overall in this voyage, Gulliver finds himself along with his companions in the land of giants. A few of them means I am talking about the companions, okay. So a few of them go to check out for water on the island. However, they could not find any water. All of a sudden, the companions were chased by a huge monster. All are they chased by a monster. This land has inhabitants that have awfully huge bodies like a monsters. It is almost that they are like a giants. They are look like a monsters. They escape with good luck, but now Gulliver is all alone on this island. He starts climbing quickly on the steep hill with barley fields and corn rising up to near about 40 feet. I am talking about a corn. It was rising about 40 feet. Corn means bhutta. It was rising about 40 feet above. Gulliver sees a field that he got a 6 feet high fence that he cannot climb easily. No one can climb on this fence. He then sees another giant in the field. Now, really he was very scared when he saw another giant in the field. He is a farmer who is working in his field along with 7 other monsters. Not monsters, 7 other huge bodies. Now Gulliver gets scared and shouts loudly, but all in vain. One of the giants picks him up and
placed him on the ground. Thus the rest came up to have a look at him. Gulliver now attempts to talk to them in different languages, but he is unable to communicate with them. As Gulliver is so little in his size, so the farmer mistakes him for an animal. The farmer thinks that he might be a good amusement for his daughter, which is why he takes Gulliver home with him. Being the kind person that he is, the farmer crumbles some bread and gives it to Gulliver to eat. The farmer's 1-year-old son arrives suddenly and grabs Gulliver and tries to eat him because he is very small in size. So his 1-year-old son suddenly grabs Gulliver and tries to eat him. Gulliver shouts loudly and the baby drops him, but the farmer's wife catches him. She puts Gulliver to bed and covers him with a handkerchief. So overall we can say that all are they look like a giants, like a monsters. Even then they are very kind to Gulliver. They are kind by their nature. We can say it because when the baby arrives and grabs Gulliver and tries to eat him, suddenly he drops Gulliver. When he shouts loudly, the baby drops Gulliver and suddenly farmer's wife catches him and puts him on her bed and covers him with handkerchief. So all these things shows that she was a kind person. All are they look like a monsters, but all are they very kind to Gulliver. So let us start the Hindi interpretation of the story. Have a look. Okay students, now listen carefully. It is an autobiography. Autobiography means when a person tells the story of his life in his own word, it is called an autobiography. Okay. It means जब कोई व्यक्ति अपनी ही कहानी, अपने ही जीवन की कहानी को लिखता है या बताता है तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है. ओके. गुलिवर अ सेलर. गुलिवर इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज अ सेलर. गुलिवर एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक सेलर है. सेलर मीन्स बेटा नाविक. ओके. वॉज वन कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स. एक बार वो जाइंट्स की दुनिया में कैद हो गया. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ हम उसके एक्सपीरियंसेस को देखेंगे कि वो जाइंट्स के लैंड में जब वो फंस गया, जाइंट्स के बीच में जब वो फंस गया तो उसने कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे. उसके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स सी. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. बात है 16 जून 1730 की. वी डिस्कवर्ड लैंड, जब हमने एक लैंड का आविष्कार किया, एक लैंड को खोजा. Our captain sent a dozen man with vessel for water. हमारे शिप के जो कैप्टन थे, आपको पता है वो सब समुद्र में यात्रा कर रहे थे और समुद्र का पानी पीने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है. सो आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल फॉर वाटर. तो हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने हम लोगों को बर्तन लेकर के उस लैंड पर भेजा पानी खोजने के लिए, वो पानी जिसे हम सब आसानी से पी सकते थे. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर किसी को मिल जाए तो पानी खोजने के लिए हमें भेज दिया. वेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहैबिटेंट्स. जब हम उस लैंड पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ तो कोई रिवर ही नहीं थी, कोई ना ही कोई नदी थी, ना ही कोई तालाब था, ना ही कोई झरना था. इतना ही नहीं, वहाँ तो कोई जीवित व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था. I went on to explore. मैं चला गया आगे पानी खोजने के लिए. The country was barren and rocky. यहाँ कंट्री उस लैंड को कहा गया है, जो पूरी लैंड थी उसको कंट्री के रूप में बताया गया है. तो कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. वो पूरा का पूरा जो शहर था जो हम लोगों ने समुद्र के किनारे खोजा था, वो पूरा शहर वॉज बैरन एंड रॉकी. शहर बंजर था और चट्टानों से भरा हुआ था. I turned back to join the crew.
मुझे कहीं पानी नहीं मिला तो मैं वापस हो गया अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, मैं वापस पीछे मुड़ा। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोअरिंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। मैंने देखा अपने क्रू मेंबर्स को बोट पर समुद्र की तरफ वापस भागते हुए, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं किसी से। बिफोर आई कुड रीच देम, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा इंसान who was walking after them in the sea as fast as he could, जो कि बहुत तेजी से समुद्र में भाग रहा था, जितनी तेजी से वो भाग सकता था। The water of the ocean reached only till his knees, और जो समुद्र का पानी था वो उस आदमी के घुटने तक ही पहुंच रहा था। वो समुद्र में भाग रहा था और समुद्र का पानी उसके घुटने तक ही पहुंच रहा था। Now you can imagine the structure of the man, कितना बड़ा वो आदमी था कि उस समुद्र का पानी उसके घुटने तक ही पहुंच रहा था। उसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे मेरे क्रू मेंबर, और मुझे उस लैंड पर अकेला छोड़ दिए। However, the monster was unable to take over the speeding boat, जबकि जो मॉन्स्टर था, जो बड़ा सा आदमी था, वो चलती हुई नाव का पीछा नहीं कर पाया, उन्हें पकड़ नहीं पाया। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. मैं तुरंत वापस भागा अपनी जान बचाने के लिए, और भाग करके मैं पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद देखा मैंने वहाँ पर कॉर्न्स लगे हुए थे, और जो कॉर्न्स थे, कॉर्न्स मीन्स भुट्टा, तो जो कॉर्न्स थे दे आर नियर अबाउट 40 फीट अबव, वो लगभग 40 फीट ऊपर थे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। एक फील्ड से, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए फेंस लगी हुई थी, बाड़ लगी हुई थी। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। और ये मेरे लिए पूरी तरह से असंभव था कि मैं इतनी ऊंची फेंस पर चढ़ पाता, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि फेंस पे चढ़ने के लिए जो स्टेप्स बने हुए थे दे आर नियर अबाउट 6 फीट हाई, वो लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर थे। अब 6 फीट की ऊंचाई पर पैर रखना इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। हियर मी मीन्स गुलिवर, ओके। So I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. इसलिए मैंने ट्राई किया कोई छोटा सा गैप ढूंढने के लिए कि जिस गैप में मैं जाकर के बैठ जाऊं उन लोगों से बचने के लिए। तब तक मैंने देखा कि एक इनहैबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। तब तक मैंने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति उसी फेंस की तरफ टहलता हुआ चला आ रहा है। He was of the same size as the creature chasing the boat. और जो व्यक्ति फेंस की तरफ यानी मेरी तरफ आ रहा था वो साइज में उतना ही बड़ा था जितना बड़ा वो वाला व्यक्ति था जो बोट का पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं एकदम हतप्रभ रह गया, मुझे बहुत डर लग रहा था और उस आदमी से, उस विशालकाय आदमी से बचने के लिए, खुद को छुपाने के लिए मैं भागने लगा। He called in a voice much louder than a trumpet. उस व्यक्ति की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी, It sounded like thunder. और सुनने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, एकदम तूफान वाली स्थिति उसके बोलने पर आ रही थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और सिर्फ एक नहीं, 7 monsters, लगभग 7 विशालकाय आदमी उस फील्ड में आ रहे थे कॉर्न को काटने के लिए। 7 मॉन्स्टर्स मेरी तरफ आ रहे थे। They carried a reaping hook which was very big. उन्होंने
रीपिंग हुक लिया हुआ था जिससे वो कॉर्न्स को निकालते, और वो रीपिंग हुक की साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. उनमें से जब एक रीपर, एक जाइंट जो था, वो जब वहाँ पहुँचा जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, मैं उसे देख करके इतनी तेज चिल्लाया जितनी तेज मैं चिल्ला सकता था। टीचर स्टॉप रीपिंग, उसने कॉर्न रीप करना बंद कर दिया। Picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. उसने मुझे अपने चारों उंगली और अंगूठे से उठा करके पकड़ा और अपनी आँखों के सामने ले गया। मैंने देखा कि मैं ज़मीन से लगभग 60 फीट ऊपर हूँ। देखकर ही कोई भी बेहोश हो सकता है। Now, he looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो जो आदमी था ना, वो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देख रहा था, बहुत ही घूर घूर के मुझे देख रहा था, और उसने मेरे चेहरे पर से बाल हटाए इसलिए कि वो मेरा चेहरा पूरी तरह से ध्यान से देख सके कि who is this man. He called his friends and gently placed me on the ground. उसके बाद उसने अपने उन बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लिया और मुझे धीरे से ग्राउंड पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. अब वो सभी जो 7 मॉन्स्टर्स थे वो सभी आकर के ग्राउंड पर बैठ गए मुझे ध्यान से देखने के लिए। I walked slowly backward and forward. मैं आगे पीछे भागने लगा, कभी मैं आगे भाग रहा था तो कभी मैं पीछे भाग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने सारे जाइंट्स मुझे घेर करके बैठे हुए थे और मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। Then I pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. फिर मैंने अपनी हैट निकाली और जो भी फार्मर्स बैठे हुए थे जो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे उनके सामने मैंने सर झुकाया रिस्पेक्ट में। I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने कोशिश की उन सबके सामने खूब तेज़ तेज़ बोलने की, और एक लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग भाषाओं में बोलने की कोशिश की, कस कस के चिल्लाने की कोशिश की कि शायद वो मेरी बात समझ सके। एक लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो मैंने दूसरी लैंग्वेज में ट्राई किया, इससे उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था और वो बहुत बड़े थे। तो उनके कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने तेज़ आवाज़ में बोलने की कोशिश की, और एक नहीं कई लैंग्वेजेस में मैंने बात करने की कोशिश की कि शायद कोई लैंग्वेज तो वो जानते होंगे। बट ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप, और हर बार जितनी बार मैं बोल रहा था वो फार्मर जिसने मुझे वहाँ से उठाया था और मुझे ज़मीन पर रखा था, उस फार्मर ने he held his ear very close to me but in vain. वो हर बार अपना कान मेरे मुंह तक लेकर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैंने एक नहीं 7 भाषाओं में बोलने की कोशिश की थी, बट मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। द फार्मर टुक मी to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. फिर वो फार्मर जिसने मुझे उठाया था तो समझ में तो उसको नहीं आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझे अपने घर ले गया और अपने घर में ले जा करके उसने मुझे डाइनिंग टेबल पर एक किनारे बैठा दिया। And the dining table which was 30 feet high from the door, और जो डाइनिंग टेबल थी वो फ्लोर से ज़मीन से लगभग 30 फीट ऊपर थी। इतनी ऊंचाई पर अपनी डाइनिंग टेबल पर उसने मुझे बिठा दिया। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर के लिए जो डिनर आया था वो लगभग 10 फीट डायमीटर पर रखा हुआ था, और उसकी जो वाइफ थी फार्मर की, his wife crumbled some bread and placed it before me.
उसकी वाइफ ने ब्रेड ली और ब्रेड को क्रम्बल करके मतलब क्रश करके उसने मेरे सामने रखा खाने के लिए, क्योंकि अगर वो पूरी एक स्लाइस देती तो वो गुलीवर से काफ़ी बड़ी होती। तो उसने एक छोटी सी पीस निकाल करके उसको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके गुलीवर को दिया खाने के लिए। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। डिनर के बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे पीछे से आ रही थी। इट वॉज द प्योरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। वो जो आवाज़ पीछे से आ रही थी वो बिल्ली के दूध पीने की आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने देखा तो जो बिल्ली की साइज़ थी उसे देख के मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। आपको पता है वो साइज़ क्या थी? द कैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। जो कैट थी वो लगभग 10 बैलों को अगर मिला दिया जाए उनसे भी बड़ी साइज़ की थी उनकी बिल्ली, जाइंट्स की। तो बिल्ली की जो साइज़ थी वो हमारे यहाँ लगभग 10 बैलों को मिला दें उतनी बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम। फार्मर की जो वाइफ थी वो मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। Then enter the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. इतना कम था कि तब तक एक औरत आई, एक लेडी आई और उसके हाथों में फार्मर का 1 year का बेटा था, लगभग 1 साल का बच्चा वो ली हुई थी। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की हैबिट होती है जो भी चीज़ उनको मिलती है वो सीधे लेकर के मुंह में डाल लेते हैं। तो वैसे ही फार्मर का जो 1 साल का बेटा था जो एक लेडी लेकर के आई थी, उस बेटे ने क्या किया, उसने मुझे उस डाइनिंग टेबल से उठाया और उठाकर अपने मुंह में रखने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं बहुत तेज़ चिल्लाया। आप सपोज कीजिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एक टाइनी क्रिएचर हैं और आपके आसपास बहुत ही विशालकाय लोग हैं तो कोई भी होगा वो डर जाएगा। तो वैसे ही गुलीवर वॉज नाउ फ्राइटेंड, बहुत ही ज़्यादा वो डरा हुआ था। When the child grabbed me from the table and put my head into his mouth, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब फार्मर के बेटे ने मुझे टेबल से उठाया। उसके लिए तो मैं एकदम खिलौना था। उसने मुझे टेबल से उठाया और उठा करके सीधे मुझे मुंह में रखने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं बहुत तेज़ चीखा, इतनी तेज़ चीखा जितनी तेज़ मैं चीख सकता था। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, और मेरी चीख की आवाज़ सुन करके बच्चे ने मुझे तुरंत छोड़ दिया। अब बच्चा वापस से उसे ध्यान से तो रखेगा नहीं टेबल पर, छोटा था, 1 साल का बच्चा था, तो वो मुझे मुंह में रख रहा था और जैसे ही मैं खूब तेज़ चीखा उसने तुरंत मुझे वहीं से छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. इतने ऊपर से गिरने के बाद तो मेरी गर्दन पूरी तरह से टूट जाती अगर फार्मर की वाइफ ने अपना एप्रन मेरे नीचे लगा करके मुझे संभाल ना लिया होता। इट मीन्स जब बच्चे ने गुलीवर को ऊपर से ड्रॉप किया, फेंक दिया, तो फार्मर की जो वाइफ थी उसने तुरंत अपना एप्रन लगा दिया और उसे कैच कर लिया। अगर वो मुझे कैच ना करती तो मेरी गर्दन तो टूट ही गई थी समझो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। उसके बाद जो फार्मर की वाइफ थी उसने मुझे उठाया, उठाने के बाद वो मुझे अपने बिस्तर पर ले गई और उसने मुझे वहाँ पर बहुत ही ध्यान से लिटा दिया। और सिर्फ लिटाया ही नहीं, शी कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, उसने अपनी सफ़ेद रुमाल से मुझे ओढ़ा दिया। अब फार्मर की वाइफ की जो हैंकी थी वो उसके लिए ब्लैंकेट का काम कर रही थी। गुलीवर इतना साइज़ में छोटा था कि वो हैंकी उसके लिए ब्लैंकेट थी। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, शी वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, उसने मुझे बचाया भी और उसके बाद अपने बेड पे लेटा करके मुझे अपनी सफ़ेद रुमाल से ओढ़ा दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, मैं सो गया और मैं अपने घर के सपने देखने लगा। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं सो गया और मैं सपने देखने लगा अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट स्टोरी। सो आई होप आप लोगों ने ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय की होगी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि गुलीवर ने अपने एक्सपीरियंसेस को हम सबके साथ शेयर किया है।
सो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी गुलिवर्स ट्रेवल। ये पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए दिया गया है पढ़ने के लिए। अगर आपको जानना है कि गुलिवर के साथ आगे क्या हुआ, वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करता था उन जाइंट्स के बीच में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस उसे हुए और वो किस तरह से अपने घर वापस पहुंचा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम नॉवेल पढ़ सकते हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स। सो रियली मैंने तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय की होगी। Okay students, it's over for today. I hope you enjoyed the story. If you have any confusion, any doubt, any query regarding the story, you can ask me without any hesitation. Next time we will meet with a new story, with a new topic very soon. Till then, keep studying, stay at home and